evening. Thanks for being with us this evening. You are with the Urban Debate tonight. I'm Seher Zama. Today we're going to be keeping the focus on two big stories and two big developments that have come in. The first is the mega Kisan protest that has taken place. In addition to the ongoing agitation here, it has been a day of the Chakka Jam. And as per schedule, it has taken place across all states. It has been observed by farmers on state highways, national highways, but has also concluded in time at 3 p.m. this afternoon with no untoward incident that has been reported. Security, of course, was stepped up across several areas, including the national capital here, even though the farmers made it clear Chakka Jam would not be observed here in Delhi. But it's a protest that ended with yet another ultimatum that had come in from the Bharatiya Kisan Union leader, Rakesh Tikait. This is as far as how long the agitation is to continue and the time that the government has now been given to repeal the farm laws. The second big development coming in with the focus here in the state of West Bengal, the ongoing election campaign. It has only gone another level up and further intensifying here with the BJP stepping in and launching their ambitious Rath Yatra. And they're calling this the Paribartan Rath Yatra, Bengal for change, if you vote for the BJP. Today the yatra was launched by the BJP chief, JP Nadda. Several attacks on the state government, the highlights of which we'll get you all of this tonight in just a bit. But let's first focus here on what's happened with the farmers' protest. This was a nationwide Chakka Jam, or what the farmers' protest called it, since morning up to the afternoon 3 p.m. It went ahead as per schedule, a well-coordinated protest by farmers across the entire country. Jams that were observed on state highways, on national highways here, but also concluded duly, as we said, at 3 p.m. But let's further get you the big announcement that came in a resolution that was decided upon at the conclusion at the success of the Chakka Jam, another form of the protest during the ongoing agitation. The Bharatiya Kisan Union leader Rakesh Tikait there said that this is an agitation which will continue and they're giving time to the government up to the 2nd of October, which effectively means 8 months more to which this agitation would continue if the government does not repeal the 3 farm laws. He also added here that the current dialogue process neither can continue because of the pressure here that has been built. Take a listen in. सरकार से हमारा ये है कि हमने अक्टूबर तक का टाइम सरकार को दे दिया है। हमारे पास टाइम की कोई कमी नहीं है। ये आंदोलन जारी रहेगा और हम देश में यात्रा करेंगे। हम निकलेंगे देश की यात्राओं की तरफ। पूरे देश में आंदोलन होगा। ये कील बोएंगे, हम अनाज बोएंगे। सरकार समझ जाए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। कंडीशनल बात नहीं होगी। एमएसपी पे कानून बनावे, 3 कानूनों को वापसी ले, जब भी घर वापसी होगी उससे पहले किसान घर नहीं जाएगा। Let's take this discussion further this evening. We have spokesperson of the Bharatiya Kisan Union with us, Mr. Dharmendra Malik. Mr. Malik, appreciate you being with us this evening. आप हमें और इस बात के बारे में समझाइए जो राकेश टिकैत ने आज बोला था कि ये एजिटेशन कंटिन्यू होगा, 8 महीने का और टाइम दिया जा रहा है सरकार को टू रिपील द फार्म लॉज. दिस इज राइट अप टू द 2nd of October. तो क्या देश के किसान 8 महीने तक दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे रहेंगे? नहीं, देखिए जमा जी, ये तो सरकार का एक तरह से बिल्कुल मतलब अड़ियल रवैया है, या कहो कि अहंकार है कि अगर कोई चीज़ सरकार लेकर आई है, कोई कानून लेकर आई है, तो उस सेक्टर के जो लोग थे उनसे बातचीत पहले करनी चाहिए थी। चलो नहीं हुआ, 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, 11 दौर के बाद भी सरकार वहीं खड़ी है। 11वीं बैठक में एक प्रस्ताव आया कि हम इनको 18 महीने के लिए सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड सॉल्यूशन है नहीं, तो जब कोई बात नहीं करेगा, इंतजार कराएगा, इस बात का इंतजार करेंगे कि आंदोलन धीरे धीरे टूट जाए, तमाम तरह की चीज़ें प्रायोजित की जाएंगी,
सिंघू बॉर्डर पे किस तरह से किया गया, पलवल बॉर्डर को कैसे हटाया गया। तो जब इस तरह के प्रायोजित कार्यक्रम होंगे सरकार द्वारा तो किसान के पास भी क्या है। और अगर सरकार इसको भी आंदोलन नहीं मान दी तो देखिए फिर इसको और बड़ा करना पड़ेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक इसको किसानों की भावना से जोड़ना पड़ेगा। और उसका तरीका यही है कि जो संयुक्त मोर्चा के नेता हैं वो अलग अलग राज्यों में जाएं, एक यात्रा निकालें, पूरे देश में जनजागरण होगा। क्योंकि देखिए पहले जब एक यात्रा हुई कि एमपी पे जब ट्रैक्टर रैली निकाली गई तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा अरे बस ये तो केवल 40,000 ट्रैक्टर थे, देश में तो 40 लाख ट्रैक्टर हैं। फिर उससे भी ज़्यादा ट्रैक्टर आए, उन्होंने कहा बस इतने ही ट्रैक्टर हैं। तो ये सरकार क्या चाहती है समझ नहीं रहे हैं। अगर ये चाहती है कि पूरा देश सड़क पे आए तो उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो उसके लिए तैयारी के लिए यही है कि हम निकलेंगे ट्रैक्टर लेके और आह्वान करेंगे कि भाई पीछे आते जाओ, जहां तक भी जाएंगे पूरे देश का एक चक्कर लगाएंगे, फिर दिल्ली लौट कर आएंगे। जी सरकार धर्मेंद्र मलिक जी, जैसे आप देख रहे हैं संसद में आज क्या इस हफ्ते बजट सेशन में जो पूरा पिछले का हफ्ता गुजरा है, ऑपोजिशन पार्टीज भी रोज ये डिमांड कर रही हैं कि इस पे डिस्कशंस की जाएं। फार्म लॉस पे नहीं, फार्म लॉस को रिपील करने पे डिस्कशन किया जाए, फार्मर्स एजिटेशन पे डिस्कशन किया जाए। उस बात पे भी सरकार अभी तक ऑपोजिशन पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज को भी नहीं टाइम दिया है। आपको क्या लगता है ये किस तरीके से आपका आंदोलन फर्दर इंटेंसिफाई होगा? क्योंकि सरकार ना ही ऑपोजिशन की ना ही किसानों की बात मान रही है। उनका जो प्रस्ताव था कि 2 साल के लिए 18 महीने के लिए टू पुट द फार्म लॉज ऑन होल्ड, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि ये बेस्ट सोल्यूशन है, आप अभी के लिए इसको मान लीजिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि विषय केवल बिल नहीं है, बिल एक विषय है, उससे भी बड़ा विषय है एमएसपी। देश में 2010 से 2016 तक ओएसडीसी की रिपोर्ट है, एक निजी संस्था की है, 35,000 करोड़ का नुकसान हुआ है किसानों को एमएसपी न मिलने के कारण। बिल भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य भी उससे बड़ा सवाल है। सरकार उस पर तो बात ही नहीं कर रही। सरकार ने कहा बिल को सस्पेंड कर देते हैं। देखिए हमारा विषय एमएसपी भी है, एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा, बिल को वापस लेना पड़ेगा। हाँ, हम ये नहीं कहते कि बिल ना आए, हम ये कहते हैं कि सरकार एक बार रिपील करे, रिपील करने के बाद एक कमेटी बनाए, कमेटी में जो जिस सेक्टर के हों, देखिए उसमें आपको एफएमसीजी के लोग चाहिए उनको भी रख लो, आप फिक्की के लोगों को रख लो, किसानों को रख लो, सरकार के प्रतिनिधि रख लो, सर्वसम्मति से जो तय हो, किसी भी सेक्टर का हित ना हो, ऐसा रास्ता आपको अपनाना चाहिए। और देखिए मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, सरकार समझ नहीं रही है ऐसा नहीं है, सरकार समझ सब रही है, लेकिन सरकार के ऊपर जो सरकार बनवाने वालों का प्रेशर है। देखिए किसान का क्या है, किसान तो वोट बैंक है और लैंड बैंक है। एक तो किसान का उपयोग होता है वोट के लिए और दूसरा होता है उसकी जमीन छीनने के लिए। दो समय पे किसान को याद करते हैं, लेकिन जो कॉर्पोरेट ताकतें हैं जो चुनाव में फंडिंग करती है, धर्मेंद्र मलिक जी आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहेंगे, सरकार अगर नहीं मानी, ये अक्टूबर तक का जो आपने डेडलाइन दिया है, अल्टीमेटम दिया है, इसका क्या मतलब है? किसान सड़क पे अक्टूबर तक बैठे रहेंगे? देखिए जाए कहां से, यहां से जाएंगे कैसे, किस मुंह से जाएंगे? लोग कहेंगे कि ये तो रण छोड़ है, ये तो आंदोलन को छोड़ के वापस आ गए। हमारे बच्चे क्या जवाब मांगेंगे हमसे? तो हमारा ये है कि अक्टूबर तक का, सरकार को 2 अक्टूबर तक का टाइम है। वहां तक सरकार अगर नहीं मानती तो उसके बाद संयुक्त मोर्चे की बैठक करके निर्णय लिया जाएगा कि पूरे देश में ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी, चाहे उसमें 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, चाहे 3 साल लगे। तो मेरा ये कहना है कि सरकार किसानों का इम्तिहान लेना चाहती है तो ले, लेकिन वे किसान, वो नागरिक जो अन्नदाता है, उनकी जानें जा रही हैं, ये गंभीर सवाल है। सरकार को सोचना चाहिए। 150 से 200 लोग बड़ी विनम्रता के साथ आपके धर्मेंद्र मलिक जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने का। वेरी क्लियर साइन दैट दिस इज एन एजिटेशन व्हिच इज ओनली टू फर्दर इंटेंसिफाई, एंड द फर्स्ट इंडिकेशन हियर दैट्स कम इन बाय द फार्मर्स दैट व्हाइल दे कंटिन्यू टू से दैट दिस विल continue timelessly till the farm laws have been repealed by the government, but now putting in a deadline of 8 months that has been given to the government.
Can there really be a scenario where the farmers continue to sit out on the roads and the streets and the Delhi borders for the coming 8 months? There is a lot for the government here right now to answer as well to the latest ultimatum by the farmers. But talking about today's Chakka Jam, while across the country we've seen an agitation, a Chakka Jam largely driven by farmers' participation, it was also partly political in some areas. Now, this was specifically at what was seen at the national capital here in Delhi. At Shahidi Bagh, members here of a group of left supporters that came in here to gather in support of this Chakka Jam.